रीड कर रहा हूं आपने भी उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा आपने यहां वहां नहीं झांकना है। समझ आती है बात? आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। हर स्टैंडर्ड का या तो एक स्कोप होगा और एक ऑब्जेक्टिव होगा। हर स्टैंडर्ड का स्कोप और ऑब्जेक्टिव लाजमी होगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? स्कोप क्या है? ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। सही है। ऑब्जेक्टिव मैं सिर्फ अगेन मैं रीडिंग कर रहा हूं, मैं समझा कुछ नहीं रहा आप लोगों को। सही है, मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव design and perform external confirmation procedure to obtain relevant and reliable audit evidence। यहां तक बात समझ आती है सबके? Evaluating the evidence obtained, the auditor shall evaluate whether the result of the external confirmation procedure provides relevant and reliable audit evidence or whether further audit evidence is necessary। समझ आ रहा होगा कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन मैं समझा नहीं रहा। मैं अगेन कह रहा हूं आपकी थोड़ी बहुत बातें समझ आ रही होंगी, लेकिन मैं नहीं समझा रहा बिकॉज मैंने ऐसे नहीं समझाया आपको अभी। What is external confirmation? Audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from a third party in a paper form or by the electronic or other medium। सही है। Relationship between audit evidence and external confirmation। मोबाइल निकाले सब जल्दी, छेती छेती चले जी। ऑडिटर चले। स्कोप ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑब्जेक्टिव डिजाइन एंड परफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड evaluating the evidence obtained, the auditor shall evaluate whether the result of the external confirmation procedure provide relevant and or whether further audit evidence is necessary। What is external confirmation? Audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from in a paper form or by the electronic or other medium। What is the relationship between audit evidence and external confirmation? Audit evidence is more reliable when it is obtained from independent। ये confirmation के बारे में नहीं बता रहा, बट कह रहा है confirmation भी तो यही है। Audit evidence is more reliable when it is obtained from independent। So audit evidence is more reliable when it is obtained directly by the audit evidence is more reliable when it exists in a documentary form। External confirmation procedure, the audit shall maintain control over the external confirmation request including, अच्छा बॉक्स सीक्वेंस आप देखते रहेगा, डिटरमाइनिंग द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अकाउंट बैलेंसेस एंड देयर एलिमेंट्स, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज। मैं भी सिर्फ रीड कर रहा हूं प्यारे बच्चों। सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, response to the confirmation request, provide more relevant and reliable audit evidence when the confirmation requests are sent to a confirming party who is knowledgeable for which the confirmation is requested। Designing the confirmation request properly, address third point पढ़ रहा हूं, contain the written information so that the confirmation is sent directly to the auditor। और आखिरी चीज लिखी हुई है, follow up on confirmation request, auditor may send an additional confirmation request when a reply to a previous request has not been received within a reasonable time। प्यारे बच्चों ये कुछ चीजें जो मैंने लिखी थी, अब मैं उसको एक बार क्या कर रहा हूं आपके साथ, आप फिर रीड कर रहे हैं। डन है यहाँ पे? अच्छा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो जो डायग्राम हमने बनाई है, जो फ्लो चार्ट हमने बनाया हुआ है, एग्जैक्टली सेम फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे भी दिखेगा। तो सिर्फ फायदा ये होगा जो बोर्ड में आप देख रहे होंगे वही आपको इंशाल्लाह किताब में भी दिख रहा होगा, ताकि एक सिंक्रोनाइजेशन चले। एक्सटर्नल कंफर्मेशन मैनेजमेंट अलाउड टू सेंड कंफर्मेशन? हाँ जी, यस या फिर अगर यस है तो क्या रिसीव्ड हुई है या रिसीव? अगर तो रिसीव्ड हो गई है यस तो रिलायबल है या फिर रिलायबल? अगर रिलायबल नहीं है तो फैक्टर्स आइडेंटिफाइड दैट मे गिव राइज डाउट ओवर द reliability of confirmation request such as was received by the auditor indirectly, appeared not to come from the originally intended confirming party, response received electronically, क्यों? Because the proof of origin and the authority of the respondent is difficult to establish। का ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अगर ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूं? obtain the further audit evidence to resolve those doubts such as request management for the direct। तो भाई उसको बोले इनडायरेक्टली नहीं, उसको बोले मुझे डायरेक्टली। contacting the CP का मतलब contacting the counterparty when the counterparty responds by the electronic email,
If received from third party, perform process such as response is from proper source, respondent is authorized, integrity over the transmission has. अच्छा, ये जो integrity over the transmission है ऊपर आपको दिख रहा होगा, encryption and other information transmission टेक्नोलॉजी, ये IT के कॉन्सेप्ट है. जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से मुझे कंफर्मेशन रिसीव होती है तो मैंने ये भी इंश्योर करना होता है कि कहीं डेटा ट्रांसमिशन में लॉस्ट या फिर इंपेयर्ड तो नहीं हो गया. सही. तो जो IT वाला पोर्शन है, इसमें कौन सा वाला पोर्शन है, इंक्रिप्शन वगैरह, ये हम अभी नहीं पढ़ रहे, इसको हम कब पढ़ होंगे इंशाल्लाह, जब हम. इंक्रिप्शन होता क्या है, आप जब व्हाट्सएप भी खोलते हैं सबसे पहली चीज लिखी हुई आती है एंड टू एंड कन्वर्सेशन आर जैसा आप बोलेंगे वही उसको रिसीव होगा. बीच में जितने भी मीडियम्स यूज हो रहे होंगे, चाहे वो वाईफाई यूज हो रहा हो, चाहे वो VPN यूज हो रहा हो, चाहे वो सर्वर यूज हो रहा हो, कोई भी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकेगा. अच्छा जी, अगर तो रिलायबल है तो मुझे क्या देखना है, हाँ जी, एक्सेप्शन की जगह लिखे मैच. अगर तो रिलायबल है प्यारे बच्चों, या तो कंफर्मेशन मैच करेगी या कंफर्मेशन मैच, अगर तो कंफर्मेशन मैच कर जाती है, हाँ जी, नो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, बिकॉज कंफर्मेशन से आपको रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो चुका है. अगर तो मैच नहीं करती, it may indicate material misstatement or potential misstatement. If material misstatement, then check whether it is the indicative of, याद आ रही है वो 3 मिनट वाले एग्जांपल, whether it is indicative of fraud. Exception या difference may also indicate the deficiency in internal control. अब कह रहा है इसमें से कुछ भी नहीं है. Some exception do not represent material misstatement due to timing and measurement. मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा. मैंने यहां से गुड्स डिलीवर्ड कर दिए हैं, मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा. सामने वाले को 3 दिन बाद रिसीव होंगे, वो परचेज 3 दिन, आपने रेवेन्यू आज रिकॉर्ड कर लिया, रेवेन्यू क्रेडिट रिसीवेबल डेबिट वो 3 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा है, परचेज डेबिट. तो प्यारे बच्चों कौन सा डिफरेंस कहलाएगा, ये मिस स्टेटमेंट, ये दिस इज द टाइमिंग डिफरेंस. इसको भी पढ़ेंगे हम डिटेल में, बट एक कॉन्सेप्ट समझ आता है जो FR1 में पढ़कर आए, वो बैंक रिकॉर्ड वगैरह जो बनाते हो. क्लियर हम सारे यहाँ पे. अच्छा जी, अगर तो मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं देती, इंक्वायर एज टू द मैनेजमेंट रीजंस फॉर द, कि भाई क्यों मुझे आप ये प्रोसीजर परफॉर्म करने नहीं दे रहे, एंड सीक ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस. आगे जो ब्रैकेट आ रहा है अभी नहीं पढ़ रहा, चले पढ़ लेते हैं. अ कॉमन रीजन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल डिस्प्यूट और ऑनगोइंग नेगोशिएशन विद द कंफर्मिंग पार्टी. Evaluate the implications of management refusal on risk of, including and on the nature, timing and extent of other audit procedures. उसके बाद perform alternative audit procedure to obtain relevant and reliable audit evidence. यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों. आगे क्या लिखा हुआ है, if the auditor concludes that the management refusal to allow the auditor to send confirmation is, or the auditor is unable to obtain relevant and reliable audit evidence from alternative audit procedure, the auditor shall also determine the implication on the audit opinion. और मेरे ओपिनियन में क्या इम्पैक्ट आएगा, ये स्कोप लिमिटेशन है, और स्कोप लिमिटेशन है अगर इम्पैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, मटेरियल प्लस परवेसिव है तो डिस्क्लेमर. ये 2 बॉक्सेस भी मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. यहाँ तक बात समझ आती है. एक सेकंड दो मुझे. ये क्लियर है हम सारे यहाँ तक. तो हमने आयजा की रीडिंग भी कर ली, आयजा की, लेकिन मजे की बात ये है हमने आयजा पढ़ा नहीं है. तो ये बात समझ आती है, अभी हमने आयजा पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत समझ आ गया आप लोगों को, कुछ स्ट्रक्चर समझ आ गया. आयजा का स्ट्रक्चर क्या है प्यारे बच्चों, बेहतरीन. हाँ नहीं, ये क्या कर रहा है, नहीं देखे, ये पढ़ लिया, ये क्लियर है. मुझे थोड़ा बहुत समझाया, 1 घंटा लगाया, ये थोड़ा बहुत, लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे. हम इस तरीके से कभी भी स्टैंडर्ड्स को हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे. क्यों? बिकॉज फिर जैसे जैसे कोर्स बढ़ता रहेगा आपके लिए कोर्स को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है.
हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इसको एक बड़े जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करें, ये क्लियर है? रीडिंग क्लियर है प्यारे बच्चों? तला साहब